My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another important session discussing questions of arithmetic for CAT 2025 examination. And if you've not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the Telegram and WhatsApp channel Mathological. And you can also message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of this session, based on partnership, A, B, and C start a business in partnership by investing some amounts at the start of the year. After 6 months, A withdraws 1/3 of the capital while B doubles his initial investment. After 3 more months, C invests an additional amount equal to half of his capital, while A withdraws half of his current investment. At the end of the year, if profit share of B was 20% more than A's share and both B and C receive equal profits, then A's investment was what percent higher than investment of C. So in all such cases, whenever there is a question on partnership, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस में प्रॉफिट शेयर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू investment and profit share is also proportional to time. Effectively, profit share is proportional to investment into time. So we are only concerned with investment into time. Okay, अब यहाँ पे 3 stages हैं. In the first stage, for the first 6 months, A, B and C का investment is in some ratio. We do not know that ratio, but let's say that is A and B and C. ठीक है, so A, B and C, their investment and time period for that investment. Let us say A has invested A rupees, B has invested B rupees, and C has invested C rupees. So for the first 6 months, this is constant. पहले 6 महीने में तो यही सेम कहानी है. After those 6 months, A withdraws 1/3 of his capital. So A has withdrawn 1/3, remains 2/3 only. 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा. तो 2A/3 will be remaining for a time period after this. As far as B is concerned, B has doubled his initial investment. पहले investment B था, अब हो जाएगा 2B. एंड सी ने कोई चेंज नहीं किया, तो सी का इन्वेस्टमेंट जितना था उतना ही रहेगा. और नेक्स्ट 3 मंथ्स, बिकॉज उसके बाद में फिर से कहानी बदलेगी. सो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स दिस इज द सिनेरियो ऑफ इन्वेस्टमेंट. आफ्टर दीज 3 months, आफ्टर 3 more months, सी इन्वेस्ट एन एडिशनल अमाउंट इक्वल टू हाफ ऑफ हिज कैपिटल. तो इनिशियली सी था प्लस C/2, यानी कि नाउ द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी विल बी 3C/2. एंड ए विड्रॉज हाफ ऑफ हिज करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट का हाफ विड्रॉ करेगा, यानी बचेगा भी हाफ. तो A/3 विल बी रिमेनिंग फॉर ए. और बी ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो बी का इन्वेस्टमेंट विल 2B ओनली. At the end of the year, if profit share of B was 20% more than A's share and both B and C received equal profit, यानी कि 3 और months बचे हमारे 6 months in the first stage, 3 months in the second stage and 3 months for the last stage. And now profit will be proportional to investment into time. ठीक है, so we can multiply A's investment with the time invested. बट पहले इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं. 6:3:3 में रेशियो बन रहा है 2:1:1 का, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो इसको. अदरवाइज मल्टीप्लाई करके बाद में सिंप्लीफाई कर लेते. तो A into 2, 2A plus 2A/3 into 1 plus A/3 into 1, which will become 2A/3 plus A/3, यानी कि A ही आ जाएगा. तो 2A plus A और A प्रॉफिट का शेयर देख रहे हैं. और B दिस विल बी B into 2, यानी 2B plus 2B plus 2B, so that will be equal to 6B. For C it will be C into 2, यानी 2C plus C, 3C plus 3C/2. This becomes 3A is to 6B is to 3C plus 3C/2, यानी कि that will be 9C/2. तो और सिंप्लीफाई होके मल्टीप्लाई दिस बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2/3 और बेटर, बिकॉज 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बिकम 2A is to 4B is to 3C. This should be ratio of profits. Ratio of profits should be this. और क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट शेयर ऑफ B was 20% more than that of A. B का शेयर was 20% more than that of A and both B and C received equal profit. B और C का प्रॉफिट इक्वल है. 4B will be equal to 3C and B share was 20% more than that of A. 20% यानी कि 1/5 ज़्यादा है. तो if A share is equal to 5, तो B का शेयर will be equal to 6, C का शेयर will also be equal to 6 only. तो यहाँ से हमें A, B और C का रेशियो मिल जाएगा. Because if 2A is equal to 5, तो A will be 2.5. If 4B is equal to 6, तो B will be 1.5. And if 3C is equal to 6, तो C will be equal to 2. क्योंकि 2.5 is to 1.5 is to 2. Multiply by 2, this will be 5 is to 3 is to 4. बट क्वेश्चन हमें नहीं पूछ रहा. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एज इन्वेस्टमेंट वॉज परसेंट हायर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ सी. सी से कितना हायर था? तो सी का इन्वेस्टमेंट वॉज 2, ए का इन्वेस्टमेंट 2.5, यानी कि 0.5 हायर. तो द आंसर विल बी 25%. 0.5/2, आंसर विल बी 25% हायर. तो क्वेश्चन सिंपल था,
बट तुम्हें डेटा कैसे लिखना है बस ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर्ली लिखोगे तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, बाद में टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। क्लियर है? बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question. Average of 27, 32, m, 43 and 54 lies between 36 and 45 if m is an even integer and is greater than average of all the numbers, all 5 numbers. So find the sum of all the possible values of m. How many possible values of m can be there? और उनका सम क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ ऑल दीज 5 नंबर्स इज बिटवीन 36 एंड 45। m इज एन अननोन, बाकी सारी वैल्यूज तो नोन है। तो एवरेज विल बी 27 प्लस 32 प्लस 43 प्लस 54 प्लस m डिवाइडेड बाई 5। तो 27 प्लस 43 is 70 और 32 प्लस 54 is 86। 70 प्लस 86 156। तो 156 प्लस m, there are 5 numbers to divide by 5. This is our average value and this is between 36 and 45. तो जब भी between mentioned होगा और अगर both 36 and 45 should be included नहीं mentioned होगा तो we'll be writing the inequality। ठीक है, इक्वालिटी नहीं लगाएंगे वहाँ पे। 36 will be less than 156 our average and average will be between 36 and 45, तो average will be less than 45 without equality on both unless mentioned. If m is an even integer and is greater than, तो यानी कि this is our first condition. Second condition is that m is even and third condition is that m is also greater than average of all the numbers. यानी कि this is average, तो m should be greater than this. So 156 plus m, this divided by 5, this should be less than m. Now multiply by 5, so 156 plus m becomes less than 5m. So 5m minus m, यानी कि 4m will be greater than 156. m will be greater than 156 by 4. So we can say that m should be greater than 39. So this is our first information, that m should be greater than 39. Now similarly यहाँ पे करेंगे process. Multiply whole inequality by 5. So 180 will be less than 156 plus m and this should be less than 45 into 5, 225. Subtract 156 on both sides. ठीक है, या तो दोनों को सेपरेटली ट्रीट कर लो, प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट 156 फ्रॉम होल इनइक्वालिटी। तो 180 माइनस 156 विल बी इक्वल टू 24। ठीक है, दैट इज लेस देन m एंड m इज लेस देन 225 माइनस 156, दैट विल बी 44 प्लस 25 यानी कि 69। our value of m will be between 24 and 69 and this information gives that m should be greater than 39. So merge both, so basically m should be between 39 and 69 and it should also be even. m का minimum value can be 40 or it can be 42 or 44, any value from 40 to 68. These are all possible values और number of possible values कितना होगा? Starting with 40, ending with 68, this is the AP with a common difference of 2. Number of numbers, number of possible values of m, अगर नंबर पूछा होता, नंबर तो नहीं पूछा है बट नंबर क्या होगा, नंबर होगा हमारा 68 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15। या वैसे ही देख लो, 40 से स्टार्ट किया हमने, 40 से 68 के लिए कितना ऐड करेंगे, 28 ऐड करेंगे। 28 बाई 2 14 एडिशनल नंबर्स हैं और 40 को स्टार्ट इंक्लूड करके टोटल विल बी 15। टोटल नंबर्स विल बी 15। ठीक है, टोटल नंबर्स 15 है हमारे। फर्स्ट नंबर इज 40, लास्ट नंबर इज 68, तो एवरेज मिल जाएगा। मल्टीप्लाई एवरेज बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स टू गेट द सम। तो 40 प्लस 68 बाई 2 इंटू 15 विल बी आवर आंसर, दैट इज 54 इंटू 15 विच इज 810। our answer will be 810. Okay, क्या ये क्लियर है? Now since also m is greater than 39, तो m का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? अगर जस्ट इन केस क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज इज ऑल्सो इंटीजर, एवरेज शुड ऑल्सो बी इंटीजर, इफ एवरेज हैज टू बी इंटीजर देन इन दैट केस m शुड बी ईदर, अगर एवरेज भी इंटीजर होना है, बाकी सारी कंडीशन ही फुलफिल करनी है, तो m को इंटीजर, तो m तो इंटीजर वैसे ही है, ठीक है, बट एडिशनली एवरेज शुड ऑल्सो भी इंटीजर। एवरेज कब इंटीजर होगा? जब 156 प्लस m इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि ईदर m शुड बी एंडिंग इन 4 और दिस शुड बी एंडिंग इन 9, बट 9 पे एंड करेगा नहीं क्योंकि ऑड नहीं है, तो इट मस्ट बी एंडिंग इन 4 ओनली। तो ईदर m विल बी इक्वल टू 44 और 54 और 64। ठीक है, तो दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m और एवरेज इन दैट केस क्या होगा? 44 ऐड करोगे 156 प्लस 44 दैट इज 200 बाई 5, एवरेज विल 40 और 54 एवरेज विल 42, क्योंकि 2 से इंक्रीज करेगा, 10 का इंक्रीज आया तो एवरेज में 10 बाई 5 2 का इंक्रीज होगा एंड नेक्स्ट विल 44। ओके,
इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question. V liters of alcohol is taken out and replaced with water from a vessel that contains 120 liters of alcohol. 25% of the mixture is taken out and replaced with water. पहले V liters of mixture is taken out, alcohol is taken out, and that has been replaced with water. Then 25% of the mixture is taken out and replaced with water. And finally 10% of the mixture is taken out and replaced with water. So in the final mixture, if water is 12 liters more than the alcohol, then what will be value of V? What will be value of V? So in any such question, initially we started with pure alcohol. We started with pure alcohol. ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी का हमें फंडा देखना पड़ेगा. तो फाइनली फाइनल कंसंट्रेशन alcohol upon total, final concentration will always be equal to alcohol upon total initial concentration. ठीक है, अल्कोहल यानी कि जिससे हमने स्टार्ट किया था, जो हमने क्वांटिटी स्टार्ट किया था हमेशा उस पर फोकस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस द रिप्लेसमेंट फैक्टर. ठीक है, एंड इफ दैट द सेम प्रोसेस हैज बीन रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस f टू द पावर n. बट इन दिस क्वेश्चन सेम प्रोसेस थोड़ी है, हर बार डिफरेंट है. पहले वी आर taking out V liters of alcohol and replacing with water. Second time we are taking out 25% of the mixture and replacing with water. Third time we are taking out 10% of the mixture and replacing with water. Always हमेशा ही ध्यान रखना है कि जिस क्वांटिटी से हम रिप्लेस करें we are replacing with water, so our calculation will always be on alcohol. ठीक है, so our calculation we will be calculation on alcohol or on that quantity not being added. जो ऐड हो रहा है ना उस पर कभी भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे. विल ऑलवेज बी फोकसिंग ऑन द कांस्टेंट, ऑन व्हाट इज फिक्स्ड और व्हाट इज नॉट बीइंग एडेड एडिशनली, क्योंकि उसमें दोनों प्रोसेस में पहले रिमूव भी कर रहे हैं और फिर ऐड भी कर रहे हैं. बिकॉज फर्स्ट टाइम तो प्योर अल्कोहल है, सेकेंड टाइम मिक्सचर में वाटर है, तो वाटर इज बीइंग रिमूव्ड एज वेल और फिर साथ में इंक्लूड भी हो रहा है. सो दैट इज वाई विल नॉट बी कैलकुलेटिंग ऑन वाटर, विल बी डूइंग ऑल अवर कैलकुलेशंस ऑन अल्कोहल ओनली. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन में बाद में कह दिया, इन द फाइनल मिक्सचर इफ वाटर इज 12 लीटर्स मोर देन द अल्कोहल. तो टोटल हमारा क्वांटिटी कितना है? इनिशियली 120 है और एवरी टाइम वी आर डूइंग रिप्लेसमेंट ऑनली, यानी कि टोटल क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज्ड. तो फाइनली विल इन द फाइनल मिक्सचर टोटल मिक्सचर विल बी 120 liters only, and that mixture will be alcohol containing alcohol. ठीक है, कैलकोलिंग कर दिया उसको, तो containing alcohol and water, but water will be 12 liters more than alcohol. अगर वाटर 12 liters मोर है हमारा अल्कोहल से, तो इन ऑल सच केसेस जब भी कभी ऐसा लाइन दिया हो तो हमेशा क्या करो, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 120. 120 में से 12 को पहले ही रिमूव कर लो और बचे हुए को दो पार्ट में डिवाइड कर दो. ठीक है, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 128 और द डिफरेंस फ्रॉम द टोटल एंड देन रिमेनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. तो वील बी सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम 120, रिमेनिंग इज 108 डिवाइड बाई 2 54 एंड 54. तो 54 विल बी अल्कोहल एंड वाटर इज 12 ज़्यादा, तो 54 प्लस 12 यानी कि 66 विल बी वाटर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, इक्वेशन नहीं बनाना है या और नहीं लिखना है, सिंपली काम क्या करना है, 120 टोटल माइनस 12, 108 बाई 2 54, तो 54 विल बी अल्कोहल एंड वाटर विल बी 54 प्लस 12 यानी कि 66. ओके, अब सिंस फाइनल का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा, फाइनल अल्कोहल बाई टोटल, तो फाइनली अल्कोहल इज 54 एंड टोटल इज 120, तो 54 अपॉन 120 एंड दिस विल बी इक्वल टू, इनिशियली क्या है, इनिशियली इट इज 120 बाई 120 और 1 है एग्जैक्टली. ठीक है, तो 120 बाई 120 लिख दो या फिर सीधे सीधे 1 ही लिख दो यहाँ पे. Initially it was 1 only. Initial concentration of work multiplied by V liters of alcohol was removed. तो replacement factor हमारा क्या आएगा? Out of total 120, we have replaced V. तो V by 120 will be our replacement factor. Or basically total 120 was there, so 120 minus V will be remaining after first replacement. Second time we have replaced 25% of the mixture, यानी कि 1/4 has been replaced, तो remaining will be 3/4. 1 minus 1 by 4 और basically 3 by 4. Third time we are replacing 10% of the mixture, यानी कि 1 out of 10 has been replaced, तो remaining will be 9 by 10, तो multiplied by 9 by 10. Now simplify it, तो 4 into 10 40, तो यहाँ बचा 3 से 18 and 9 से this will be 2, अच्छा ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ध्यान रखना. ठीक है, 40 से कैंसिल किया था हमने, तो 2 by 3, तो 1 minus V by 120 या 120
1 minus v by 120, this becomes equal to 2 by 3. So v by 120 becomes equal to 1 by 3. So v will be equal to 40. In this case, in the final mixture, water is 12 liters more than alcohol, so v का value will be equal to 40 liters. Is this clear? ठीक है, अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फाइनल मिक्सचर में गिवन है, मैं डायरेक्टली डायरेक्शन गिवन है कि वाटर इज 12 liters मोर देन अल्कोहल, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन होता है कि द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड अल्कोहल फाइनली इज 12 liters, तो वहाँ पे दोनों केस पॉसिबल होते हैं. इन दैट केस दोनों केस पॉसिबल होते हैं कि मे बी अल्कोहल वुड हैव बीन मोर देन वाटर, यानी कि अल्कोहल 66 होता है, वाटर 54 होता है. दैट माइट ऑल्सो हैव बीन पॉसिबल. तो वहाँ पे दो सॉल्यूशंस होते हैं फिर उस केस में, उससे भी हमें अल्टीमेटली आंसर निकालना पड़ता है. तो कभी अगर क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन है तो बोथ थिंग्स आर पॉसिबल. मे बी वाटर इज मोर देन अल्कोहल, मे बी अल्कोहल इज मोर देन वाटर, बोथ आर पॉसिबल. बट यहाँ पे क्लियरली गिवन है दैट वाटर इज मोर देन अल्कोहल, सो दैट इज वाई वी हैव सॉल्व्ड इट दिस वे. ओके, ठीक है, बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question. Vessels A and B contain equal volumes of pure water and pure milk respectively. A tea maker takes P% of water from vessel A and pours it in vessel B. So a chai wala is taking P% of water from vessel A and pouring it in vessel B. Now he takes P% of mixture from vessel B and pours it in vessel A. The ratio of water in vessel A to water in vessel B is 19:6 after these two operations. To find the value of P if it is given that after first operation water in vessel A was more than water in vessel B. Given क्या है हमें, फर्स्ट ऑपरेशन के बाद में water in vessel A was more than water in vessel B. Okay, so there are two vessels, vessel A and vessel B. Understand the process clearly. Vessel A and vessel B both are containing equal volumes of, यानी कि vessel A is containing pure water, vessel B is containing pure milk. इन एनी सच क्वेश्चन, क्योंकि हमारा कंसर्न क्या है, जब भी कभी मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला क्वेश्चन आए तो इन मिक्सचर एंड एलिगेशन आवर कंसर्न इज ऑलवेज विद रिप्लेसमेंट फैक्टर, व्हाट क्वांटिटी हैज बीन रिप्लेस्ड, ठीक है, और व्हाट क्वांटिटी हैज बीन एडेड. तो दैट फ्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट, दैट फ्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज 10 liters of milk in vessel A and we've removed 2 liters of milk, so basically we've removed 20% or 1/5 has been removed. ठीक है, now this 2 liters will be added इन वेसल बी, ठीक है, और फिर वेसल बी से हम रिमूवल करेंगे. सो ऑलवेज फोकस ऑन दिस फ्रैक्शन, दैट मेक्स थिंग्स इजियर. सो इंस्टेड ऑफ P% विल एज्यूम दैट P% के लिए हमारा जो फैक्टर होगा, फ्रैक्शन विल बी F. ओके, फ्रैक्शन इज F. तो इन द फर्स्ट सिनेरियो वेसल A कंटेन्स लेट अस से 1 units of water and vessel B contains 1 units of milk. एंड वेसल ए में मिल्क इज 0, वेसल बी में वाटर इज 0. दिस इज एट द स्टार्ट. नाउ फर्स्ट ऑपरेशन में वी आर रिमूविंग P% of water from vessel A. Let us say P% is equal to F. So F fraction we have removed. So F we have removed. So F we have subtracted from this. And now this water will be added to vessel B. F will be added here. After first operation, this is operation number 1. So after first operation, water is 1 minus F in vessel A, milk is still 0, and water in vessel B is F and milk is equal to 1. ठीक है, जितना सिंपल रख सको उतना सिंपल रखोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी समझना. अब सेकंड ऑपरेशन में क्या होगा, इन द सेकंड ऑपरेशन नाउ अगेन P% ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम वेसल B इज रिमूव्ड एंड पोर्ड इनटू वेसल A. अब जब हम P% के लिए अगेन फ्रैक्शन कितना आएगा, F ही आएगा. अगेन यू आर रिमूविंग F ओनली, ठीक है. सो नाउ F विल बी अप्लाइड ऑन व्हाट. ध्यान ये देना है कि देखो यहाँ पे हम क्वांटिटी सेम नहीं रिमूव कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर रिमूविंग अ सर्टेन फ्रैक्शन. तो इनिशियली इफ लेट अस से वाटर वाज 10 liters, मिल्क वाज 10 liters इन वन वेसल और 10 liters वाटर वाज देयर इन सेकंड वेसल, तो हमने 20% रिमूव किया था. ठीक है, ये एग्जांपल जो हमने सेपरेटली लिया था उसके बारे में बात करें. फिर क्या हुआ, व्हेन वी एडेड 2 liters मिल्क इन द सेकंड वेसल, तो सेकंड वेसल में टोटल 12 liters मिक्सचर हो गया. 2 liters इज मिल्क एंड 10 liters इज वाटर. टोटल मिक्सचर हमारा 12 liters है. अब जो 1/5 रिमूव होगा वो 12 liters का 1/5 रिमूव होगा, यानी दिस टाइम विल बी एक्सट्रैक्टिंग 2.4 liters मिक्सचर. क्वांटिटी इज नॉट द सेम, फ्रैक्शन इज सेम. ये बात ध्यान रखना है, क्वांटिटी डिफरेंट है. ठीक है, तो अगेन द फ्रैक्शन विल बी F ओनली, यानी कि अगेन वी विल बी रिमूविंग F फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड F फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क रिमूव विल बी F ओनली.
and water removed will be f of f, यानी कि f square. F square water will be removed and f milk will be removed. Okay, ठीक है. इसको एक सेकंड थोड़ा सा बेटर तरह से लिखते हैं. F milk will be removed and f square water will be removed, and hence this will be added accordingly in the operation 2. So after operation 2, water will be 1 minus f plus f square. Milk will be f in the first vessel, और second vessel में water will be f minus f square and milk will be 1 minus f. Our question is saying कि ratio of water in vessel A and ratio of water in vessel B का ratio is 90:6. So this is water in vessel A, this is water in vessel B. Apply the ratio. So 1 minus f plus f square upon f minus f of square, f square, that is 19/6. That is 19/6. ठीक है. क्लियर है. अब अगर थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व कर पाए कि न्यूमरेटर में दिस इज 1 माइनस एफ प्लस एफ स्क्वायर एंड दिस इज एफ माइनस एफ स्क्वायर. तो इफ वी ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स तो चीज़ें आसान हो जाएंगी. इफ वी ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, अदरवाइज भी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे. बट अगर 1 ऐड कर दोगे तो न्यूमरेटर विल बी 1 ओनली. इफ यू ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स तो न्यूमरेटर विल बी 1 ओनली. तो 1 अपॉन एफ माइनस एफ स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 19/6, 25/6. 25/6. ठीक है. अब मल्टीप्लाई कर लो, बात वही है बट थोड़ा सा आसान लगा. 6 इज इक्वल 25f माइनस 25f स्क्वायर. तो क्वाड्रिक बन गया f में. 25f स्क्वायर माइनस 25f प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0. अब इसे सॉल्व करना है. 25 इंटू 6 इज 150. फ्रेश पेज पे लिखते हैं इसको. 25f स्क्वायर माइनस 25f प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0. 25 इंटू 6 इज 150 और सम आ रहा है यहाँ पे 25. 15 और 10 में ब्रेक कर सकते हैं. तो 1 will be 15, 1 will be 10, and then we'll be dividing by coefficient of f square and divide by 25. So either f will be equal to 3/5 or f will be equal to 2/5. Two possible options are there for f. 3/5 यानी कि out of 5 3 is removed, this is 60%. Out of 5 2 is removed यानी 40%. तो या तो 60% आंसर होगा या फिर 40% आंसर होगा. बोथ आर पॉसिबल आंसर्स. अब यहाँ पे हमारा लास्ट लाइन जो मेंशन है, दैट वाज रिटन फॉर दिस रीजन ओनली, दैट इफ इट इज नोन दैट आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन वाटर इन वेसल ए वॉज मोर देन वाटर इन वेसल बी. फर्स्ट ऑपरेशन के बाद में वाटर रिमेनिंग इन वेसल ए वॉज मोर देन वाटर इन वेसल बी. दैट इम्प्लाइज दैट पी शुड बी लेस देन 50%. तभी तो ऐसा होगा. अदरवाइज आफ्टर फर्स्ट ऑप्शन वाटर इन वेसल बी ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, इजंट इट सो? तो पी शुड बी लेस देन 50%, यानी कि 60% विल नॉट बी द आंसर, 40% विल बी द आंसर. और आंसर विल बी 40%. क्या ये क्लियर है? ओके. आंसर इन दिस केस विल बी 40% ओनली. ठीक है. ओके. अब देखो इस बात पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और समझते हैं सो दैट और अपने लिए कैलकुलेशन को सिंपल कर सकें इफ पॉसिबल. द क्वेश्चन इज सेइंग वेसल ए है, वेसल बी है. वेसल ए कंटेन्स प्योर वाटर, वेसल बी कंटेन्स प्योर मिल्क, and tea maker is taking p% of water from vessel A and pouring it in vessel B. Now he takes p% mixture from vessel B and pours it in vessel A. So in this whole process, total volume of milk is same if we include both vessel A and vessel B. So if we include both vessels A and vessel B, तो total volume of milk remains same. Total sum तो same ही रहेगा. Total volume of water is also same in both the vessels together. ठीक है. So finally we being given ratio of water in vessel A to water in vessel B. तो दोनों का हमें वाटर का ही वैल्यू गिवन है. तो वाटर इन वेसल ए इज 19, वाटर इन वेसल बी इज 6. तो टोटल वाटर तो मिल गया हमको. इफ टोटल वाटर इज 25 इनिशियली, this 25 will be in vessel A, isn't it so? And that water has been distributed as such in a manner that now only 19 is remaining in vessel A and remaining is in vessel B. 6 is in vessel B, isn't it so? क्या है, क्लियर है?
आउट ऑफ 25 ओनली 6 इज रिमेनिंग वेसल बी, इजंट इट सो? तो अगर हमने एफ फ्रैक्शन को रिमूव किया था, इफ p% was equal to f, because now we know total water initially and remaining water in vessel B. If we removed f fraction, so that f fraction was added in vessel B, and then we removed f fraction from vessel B, तो water पे क्या change आएगा? Minus f square will be removed, or you can say that remaining will be f fraction was there in vessel B, and remaining after the removal, after second operation, will be f into 1 minus f, because f has been removed, so remaining will be 1 minus f into 1 minus f, and this should be equal to remaining water out of total water, यानी 6/25. हुआ क्या? Initially 25 units water was there in vessel A, then we removed f from vessel A and kept it in vessel B, poured it in vessel B. ठीक है, तो हमारा f फ्रैक्शन में रिमूव किया, तो वेसल बी में कितना हो गया होगा? f into 25. Then we removed f fraction from vessel B and poured it in vessel A, तो remaining will be f into 1 minus f, यानी 25 into f into 1 minus f, this is equal to 6. यही बात लिखा है कि f into 1 minus f that is equal to 6/25. अब बस यही इक्वेशन हमें सॉल्व करना है अल्टीमेटली. दिस इक्वेशन विल गिव अस रिजल्ट ऑफ f. ठीक है, तो या तो यहीं पे ऑब्जर्व कर लो f into 1 minus f आ रहा है, यानी कि, और ये 6/25 आ रहा है, 25 यानी 5 into 5, ऐसे ही ब्रेक हो सकता है. तो 5 into 5 यानी कि न्यूमरेटर में 2 into 3 विल बी देयर, 2/5 into 3/5, दोनों के बीच का, दोनों का सम 1 है, क्योंकि हमारा f और 1 minus f का सम भी तो 1 ही है. ठीक है, तो 2/5 into 3/5 दैट विल बी द आंसर. तो इधर f will be 2/5 और f will be 3/5, अदरवाइज क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर ही लोगे. क्या ही बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और अगर ये मेथड समझ जाओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है. अदरवाइज ये तरीका तो है ही अपना. ओके, क्लियर है? तो इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो सबको समझ में आएगा. एंड इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड ऑल्सो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. तुम्हें सेशन कैसा लगा? ओके, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, एंड बाय बाय, टेक केयर, मेक श्योर टू लाइक दिस सेशन एज वेल and share about the session with others, with other of your friends. That's all. Take care. Keep learning.